Hello physics champs, how are you all? I hope you're doing great, guys. And if you are understanding the lectures from my video, so don't forget to subscribe and like my channel. Okay, moving on to the next, we have already completed first law of motion and now we are back with the second law and the third law. Okay, chapter completion. We'll be starting with that now. Okay, we are starting with law of momentum. Do you all know what is law of momentum? This is the second law. I have already told you in the previous lecture that first law of motion is called law of inertia. Second law of motion is called law of momentum, and third law is called law of action reaction. So we have studied first law of motion, which is law of inertia. Now we will be studying second law of motion, which is law of momentum. Let's start with this now. Rate of change of linear momentum is equal to the force applied. Rate of change of momentum, okay, is equal to the force applied. The direction of force is always in the direction of change in momentum. Okay, students, most of the students think that force is like second law of motion is F equals to ma, which is not true all the times. You don't know, actually the law of second law is divided into three cases. It has three cases. I'll be explaining you that. Most of the time we use this case F equals to ma. Okay, these cases are as follows. I'll tell you. As we move on to the next, I'll tell you. Okay, this is the mathematical formulation of second law of motion. Second, all three laws. Okay, I'll tell you. First law of motion tells us about what is force. It defines the force. Second law of motion tells us how to find a force. Okay, and third law of motion tells us about the characteristics of motion. Action reaction होता है जो, that is characteristic of motion. ओके और जो सेकेंड हमारा लॉ है उसमें अमाउंट ऑफ फोर्स हम फाइंड आउट करते हैं. अमाउंट ऑफ फोर्स, कितनी फोर्स लग रही है, हम वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में फाइंड करते हैं. तो हमें उसमें फाइंड करना होता है. तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज़ नोन एज मैथमेटिकल लॉ. ओके, रेस्ट बोथ ऑफ द लॉज, फर्स्ट एंड थर्ड लॉ आर थ्योरेटिकल लॉज एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड mathematical law because here we have to find the amount of force. There are three cases, guys. First of all, we'll study this one. Change in momentum. If we have to find change in anything, हम माइनस करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट. सो इफ वी हैव टू चेंज, अगर हम चेंज इन वेलोसिटी भी फाइंड करते हैं तो हम v2 माइनस v1 एंड लाइक दिस ऐसे करते हैं ना. तो वैसे ही चेंज इन मोमेंटम. मोमेंटम इज नोटेड फ्रॉम p. सो p2 माइनस p1, फर्स्ट स्टेप p2 माइनस p1. ओके, सेकेंड स्टेप इज P को हम क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू एम वी, है ना. तो इसको ऐसे ही लिखा है P इक्वल्स टू एम वी माइनस P इज इक्वल्स टू एम यू. ठीक है, P2 हमारी फाइनल वेलोसिटी है विच इज़ V, और P1 में हम यूज़ करेंगे इनिशियल वेलोसिटी विच इज़ U. ठीक है, सो हियर एम वी माइनस एम यू. अब इनमें से हमारा M कॉमन आ जाएगा, है ना. M कॉमन आ जाएगा तो M बाहर और अंदर V माइनस यू रह जाएगा. ठीक है, V माइनस यू रह जाएगा अंदर. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है आपको पता है ना, फोर्स. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड. अभी हमने पीछे पढ़ा है ना. लेट्स सी प्रीवियस स्लाइड सो दैट यू कैन ऑब्जर्व दैट. लुक एट दिस. रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना. Rate of change of linear momentum is equal to force applied. So here we write like rate of change of momentum is equals to, directly proportional to m and then v minus u upon t. The applied force, यहाँ f आ जाएगा. rate of change of momentum equal होता है इसके f directly proportional to m into v minus u
upon t. Now you know v minus u upon t is acceleration. Do you know that? We write a is equals to v minus u upon t, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, है ना. एक्सेलरेशन ये होता है, हमने पढ़ा है. सो f इज इक्वल्स टू, अब हम जब एक जब हम दिस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हम हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, विच इज़ k हियर. यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है? k. सो k m एंड देन k हो गया, m हो गया, देन दिस इज a, है ना, दिस इज a. सो k m a हो गया. k यहाँ पे k 1 है, इसकी वैल्यू देखो, वैल्यू ऑफ k बिकम्स 1. वाई? बिकॉज फोर्स इक्वल्स टू m में हो रहा है, यहाँ पे k कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा. सो दिस इज 1 एंड द फॉर्मूला इज हियर f इक्वल्स टू m a. Now moving on to the next cases which I'll tell you. The first case हमारा आता है जब हमारा जो फोर्स मास है वो कांस्टेंट रहता है और जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है. ओके, ठीक है. m यहाँ पे क्या रहता है हमारा? कांस्टेंट. ओके, m हमारा कांस्टेंट रहता है और जो हमारी वेलोसिटी है, वेलोसिटी इन द सेंस एक्सेलरेशन जो है वो हमारी वेरिएबल होती है. ओके, मास कांस्टेंट, एक्सेलरेशन वेरिएबल. दिस इज द फर्स्ट केस. इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में देखो हम कैसे करते हैं. हम लोग लिखते हैं ना dp अपॉन dt. p की जगह हम mv लिख देंगे. p की जगह हमने लिख दिया mv. अब हम लोग मास कांस्टेंट ही क्यों लें? वो केस पे डिपेंड करता है मास कांस्टेंट आएगा या नहीं. इसमें यू कैन सी मास इज कांस्टेंट एंड वेलोसिटी इज चेंजिंग. अ पर्सन इज पुशिंग अ मास, उसकी वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, यू कैन सी इट्स मूविंग, बट जो इसके अंदर जो ये मास है वो कांस्टेंट है, वहीं रह रहा है. तो इसमें मास कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी वेरिएबल है ना. तो अब हम इसमें मास कांस्टेंट रखेंगे, मास को हम बाहर ले आएंगे और v का हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे. जब हम dv अपॉन dt करेंगे तो dv अपॉन dt इज एक्सेलरेशन, dv अपॉन dt एक्सेलरेशन होता है. ओके, यहाँ पे हमने ऐसे लिखा m बाहर हमारे पास m बाहर आ जाएगा एंड देन m dv अपॉन dt. नाउ m यहाँ पे f है, f इक्वल्स टू है ना, तो dv अपॉन dt क्या होता है? एक्सेलरेशन. ठीक है, वेलोसिटी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन, तो ये बन जाता है हमारा f इक्वल्स टू m में. तो ये हमारा जो होता है वो फर्स्ट केस होता है. हम इसको ऑल द टाइम करेक्ट नहीं कह सकते. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट केस में f इक्वल्स टू m में होता है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप कहीं भी पढ़ोगे तो वो f इक्वल्स टू m में बताते हैं. ठीक है, विच इज़ 50% करेक्ट. राइट, नाउ आई टेल यू द नेक्स्ट. इसमें मास कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन वेरिएबल है. ठीक है, वील मूव ऑन टू नेक्स्ट. नाउ दिस, आप लोगों ने कभी वो एयरपोर्ट्स पे जो ये हमारी चेकिंग मशीन होती है आपने देखी है? अगर आपने देखी हो, दिस इज़ द सेकेंड केस वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. दिस इज़ द सेकेंड केस. इस केस में क्या होता है? मास वेरिएबल होता है. नाउ यू विल आस्क हाउ. मास वेरिएबल कैसे होता है? मास वेरिएबल इसलिए होता है क्योंकि ये जो लगेज हैं ये अलग अलग वेट के होते हैं, सारे सेम वेट के नहीं होते. तो जो भी यहाँ पे सामान हम रखते हैं, द लगेज वी कीप हियर आर ऑफ डिफरेंट मासेस. तो मास इसका डिफरेंट इस पर हम रखते हैं, बट जो वेलोसिटी है इस बेल्ट की, रबर बेल्ट आपको दिख रही है, इसकी जो वेलोसिटी है ये बिल्कुल सेम है. ये वेलोसिटी बिल्कुल सेम रहेगी, है ना. तो इसमें मास तो इसमें जो हमारा मास है वो तो वेरिएबल ही रहेगा. ठीक है, मास हमारा वेरिएबल रहेगा, वेयर एज जो हमारी वेलोसिटी है
विच इज़ एक्सेलरेशन, वो वेलोसिटी है, जो हमारी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट है ये रबर जो बेल्ट है ये कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रही है, और जिस पे लगेज है वो अलग अलग मास का है। तो ये हमारा सेकंड केस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारा आता है ऐसे एफ, है ना, हमारा इसमें क्या कैसे होता है, एफ इज इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी। ठीक है, पी की जगह हम लोग क्या रखते हैं, एम वी, है ना, एम वी रखते हैं। तो इसमें हमारा मास वेरिएबल है तो अंदर रहेगा, कांस्टेंट बाहर आता है, वी बाहर आ जाएगा, एम अंदर रहेगा, डी एम अपॉन डी टी मास वेरिएबल है। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड है इसमें तो हमारा वेरिएबल कांस्टेंट था तो वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हमारा क्या होता है, तो हम एफ इक्वल्स टू एम ए इसमें तो नहीं कह सकते ना, एम ए बन रहा है कहीं पे यहाँ पे, नहीं, तो एम ए नहीं कह सकते हम लोग इसमें। ठीक है, नेक्स्ट जब हम जाते हैं थर्ड केस पे, जो हमारा थर्ड केस है कि जो रॉकेट होता है, आपने रॉकेट देखा है, इसमें जो मास है फ्यूल का है, फ्यूल यूज्ड अप होगा जब ये लॉन्च होगा, तो इसमें जो हमारा फ्यूल है वो यूज्ड अप होगा, मतलब मास क्या है, वेरिएबल, और वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल, अगेन वेरिएबल, दोनों वेरिएबल हैं इसमें, मास और वेलोसिटी दोनों, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, लॉन्च होगा तो, और जब जो मास है वो भी चेंज होगा, है ना, यूज्ड अप होगा ना फ्यूल उसमें यूज़ करेंगे, ये रॉकेट यूज़ करेगा फ्यूल लॉन्च होने में, तो ये भी यूज़ होगा, तो ये भी वेरिएबल है। तो ये दोनों, ये केस है हमारा वेरिएबल का। हमने फर्स्ट केस में पढ़ा कि, ठीक है, ये मैं आपको ये समझाती हूँ पहले। ठीक है, ये दोनों वेरिएबल है, तो इसे हम यूवी के उससे समझते हैं। यूवी हमारा डिफ्रेंसिएशन आपने पढ़ा होगा, डिफ्रेंसिएशन में हम लोग यूज़ करते हैं फाइंड करने के लिए, डिफ्रेंसिएशन करने के लिए हम यूवी यूज़ करते हैं। ठीक है, यूवी कैसे यूज़ होता है, एक बार v को बाहर रखो, m का करो डेरिवेशन, और देन v को बाहर रखो और m का करो। ओके, ये समझ आया। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू ऑल थ्री लॉज। ठीक है, ऑल थ्री लॉज हमने फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा, जो मास है वो हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट, है ना, मास हमारा क्या है, कांस्टेंट, और v क्या है, वेरिएबल, है ना, v क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, ये वेरिएबल है। सेकेंड लॉ में हमारा जो मास है, सेकेंड लॉ कौन सा, लगेज वाला, उसमें मास हमारा वेरिएबल है ना, और जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, एक ही वेलोसिटी से वो बेल्ट आगे मूव कर रही है ना। ठीक है, समझ आ गया। थर्ड में हम पढ़ते हैं मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, मास एंड वेलोसिटी बोथ वेरिएबल, दोनों चेंज होते हैं, है ना। तो अब हमारा इसमें तो कौन सा लगता है, एफ इक्वल्स टू एम ए, इस वजह से हम एफ इक्वल्स टू एम ए बोलते हैं क्योंकि इसका पहला केस ये होता है। दूसरे में एफ इक्वल्स टू एम ए नहीं लगता और ना तीसरे में लगता है एफ इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ के मतलब फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग एफ इक्वल्स टू एम ए सही है। अब आई होप कभी आपसे कोई पूछेगा कि सेकेंड लॉ क्या होता है, तो यू नॉट से एफ इक्वल्स टू एम ए होता है। दिस इज़ 50% करेक्ट, नॉट कम्प्लीटली राइट। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं, ये हमारा सेकेंड लॉ का ही एग्जाम्पल है। बाय अ क्रिकेट बॉल पुल्स
हिज हैंड ग्रेजुअली वाइल होल्डिंग कैच अ बॉल, पीछे कर लेता है ना वो हाथ, थोड़ा पीछे करता है. वाई? इन ऑर्डर टू इंक्रीज रिएक्शन टाइम सो ही फेल्ट लेस फोर्स ऑन हिज हैंड्स. एकदम से वो आगे करके पकड़ेगा हाथ तो ज़्यादा फोर्स लगेगा उस पर, हाथ पे ज़्यादा चोट आएगी. बट जब वो दूर कर लेगा, रिएक्शन टाइम उसका और इंक्रीज़ कर देगा, तो उसके हाथ पे कम फोर्स लगेगी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन विच टेल्स अस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स. लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई लव दिस. ओके. एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. हर का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अभी आपको एग्जांपल दे रखा है एक स्प्रिंग का. यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है. स्प्रिंग को अगर आप आगे अपनी तरफ खींचोगे तो वो वापस पीछे जाएगा ना. जिस फोर्स से आप अपनी तरफ खींचोगे उसी फोर्स से ही वापस बैक जाएगा. जिस फोर्स से आप अपनी तरफ खींचोगे उसी से वो वापस बैक जाएगा. ठीक है. ये लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन इज सुपर ईजी. पहला एग्जाम्पल देखते हैं इसका. वाइल वॉकिंग वी प्रेस द ग्राउंड. दिस इज आर रिएक्शन. रिएक्ट कर रहे हैं हम. ठीक है. एक्शन, सॉरी, हमारा एक्शन है ये. हम लोग ग्राउंड को पुश करते हैं इन बैकवर्ड डायरेक्शन. पीछे हम खुद आगे जाते हैं और ग्राउंड को पीछे पुश करते हैं. ये अलग बात है कि हमें दिखता नहीं है कि हम वो पुश हो रहा है या नहीं. इट पुशेज अस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद इक्वल फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन. ऑपोजिट एक्शन रिएक्शन है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा इसका रिएक्शन आता है. हम लोग उसको पीछे पुश करते हैं, वो हमें आगे कर देता है पुश, तभी हम आगे चल पाते हैं. ठीक है. ये देखो, दिस गर्ल इज पुशिंग द फ्लोर बैकवर्ड और ये खुद कहाँ जा रही है? आगे. फ्लोर इज पुशिंग हर फॉरवर्ड. So this is the example 1. Example 2 we can take. While swimming, a person pushes his hands in the backward direction and water pushes him forward. ये तो आपने देखा होगा, जब आप पानी से हाथ से पानी पीछे करते हो तो we move ahead, है ना, हम आगे चलते जाते हैं. जैसे कि दिस पर्सन इज़ डूइंग, ये अपना हैंड आगे करता है और पानी को पीछे की तरफ पुश करता है, तो ये खुद कहाँ जाता है? आगे. ओके. Now that's all for this chapter, guys. Okay, this was basics of the chapter and all. So if you like my video, don't forget to subscribe my channel, don't forget to like the videos, and if you're liking, please don't forget to share with your friends so that उनको भी ऐसे interesting videos मिलते रहें. And I'm giving you the link in the description box. I have a WhatsApp group. I've created a WhatsApp group, so 9th class students or 10th class students, any student willing to join that group can join that group via link. Okay, I welcome them. I'm always there to help them. Okay, so thank you very much, guys, and see you in the next video. Bye.